गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबको आपका अपना अतुल जी अकेडमी में। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का वर्कशीट 3 तक खत्म कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे वर्कशीट 4। आइए शुरू करते हैं आज के क्लास। क्या है वर्कशीट 4? तो अब तक हम लोगों ने जो कंडीशन डिसाइड किया था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगे। पहले हमने कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ट्रिपल एस यानी कि साइड 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 खत्म किया। उसके बाद साइड एंगल साइड एंगल कंप्लीट किया। आज हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तो आर एच एस दैट मींस राइट एंगल hypotenuse and side. So two triangles are said to be congruent in RHS if both the triangles have one right angle। देखो यहाँ पर एक right angle है, two triangles ये दोनों भी congruent है। देख लो, ये two triangles have one right angle and hypotenuse should be equal to another hypotenuse। It means hypotenuse should be equal to another triangle's hypotenuse in any one side. Suppose this one side be equal to another side, then the triangles are said to be congruent। फॉर एग्जाम्पल लेके देखेंगे, यहाँ पर RHS कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट करना है राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। वहां पर देखो, इसका नाम मान हम देते हैं A B C, इट इज D and E F। So A, B, C and D, F are said to be congruent in RHS if one hypotenuse first right angle B angle is equal to E angle, corresponding angle equal होना चाहिए right angle, then hypotenuse AC is equal to with B, AC is equal to TF 8 centimeter, hypotenuse equal हो गया, right angle equal है any one side, suppose BC will be equal to with EF, BC equal with EF, then triangle ABC congruent with triangle DEF which condition by RHS condition, the condition of RHS। तो ABC congruent with DEF by RHS। तो याद रखना, the two triangles said to be congruent if one triangle's corresponding right angle to be equal to another triangle and corresponding hypotenuse to be equal to the corresponding hypotenuse of another triangle and one side is equal to the corresponding side of others। यहाँ पर क्लियर कर लिखा है, then it should be congruent with the RHS, तभी जाके वो RHS में congruent कहलाएगा। then हम चलते हैं वर्कशीट 4 के तरफ। ABC is isosceles with AB is equal to AC, then AB is equal to AC given, then AD is altitude, altitude means 90 degree, यहाँ सिंबल में देते हैं altitude means 90 degree। so is triangle ABD congruent triangle ACD, yes it is congruent होगा। कैसे होगा? which criterion? RHS में congruent का, both triangles are congruent by RHS। तो व्हाट आर द मैचिंग पेयर्स? मैचिंग पेयर्स लिख लेते हैं, इन बिटवीन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD क्या क्या इक्वल है ना? AB इज इक्वल टू AC, इट इज गिवन। AB इज इक्वल टू AC है, गिवन दे रखा है। देन एंगल ADB इज इक्वल टू ADC, दैट इज योर 90 डिग्री। ADB is equal to ADC 90 डिग्री, AB is equal to AC वो गिवन दे रखा है। देन और क्या इक्वल होगा? AD is कॉमन, AD is equal to कॉमन। तो हमने देखा एक राइट एंगल मिला, एक हाइपोटेन्यूस मिला और एक वन साइड मिला। सो ट्रायंगल ABD congruent with triangle ACD which criteria? by RH। by RH criteria triangle ABD congruent with triangle ACD। then is it true to say that BD is equal to CD? yes, BD is equal to CD by CPCD। CPCD means corresponding parts of congruent triangle, answer will be yes। yes it is true to say that BD is equal to CD due to corresponding parts of congruent triangle। next, in the figure of the triangles are congruent by RHS condition, if congruent write the result in the symbolic format which two triangles are congruent in RHS।
तो पहले वाले में मैच कर लेते हैं। ए डी बी अगर देखें एक राइट एंगल मिलेगा और ए सी बी में भी वन राइट एंगल मिलेगा, वन साइड इज आल्सो इक्वल एंड हाइपोटेन्यूज इज कॉमन। सो देन पार्ट आई में इन ट्राइंगल आई में ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ए डी, देखो ए डी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स मैच होनी चाहिए। ए डी बी आया तो यहाँ पर होगा बी सी ए कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल बी सी ए। तो ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल बी सी ए से शुरू हुआ, डी 3 सेंटीमीटर और बी पे खत्म हुआ। इसी तरह बी से शुरू हुआ, बी सी 3 सेंटीमीटर और ए पे खत्म हुआ, तो ए डी बी कॉन्ग्रुएंट विद बी सी ए। सिमिलरली अगर डबल आई पे देखेंगे ये वाला एंगल 90 डिग्री है बीटीसी और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये वाला मैच कर रहे हैं। यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू बी सी हो रहा है, ये हाइपोटेन्यूज हो रहे हैं और बी डी इज कॉमन। अगर डबल आई वाला करेंगे ये भी ट्राइंगल ए बी डी ले रहे हैं, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट करवा रहे हैं। इसी तरह क्या होगा, देखो ए बी साइड से आया और बी डी पर खत्म हुआ। इसी तरह क्या होगा सी बी साइड से आएगा डी पे खत्म हुआ, तो ट्राइंगल सी बी डी विल बी कॉन्ग्रुएंट। ये सारे आरएचएस हैं, ये भी आरएचएस में कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, ए बी डी सी बी। और यहाँ पर आएंगे, ये तो आसान है, ट्राइंगल ए बी डी क्लियर कर दिख रहा है, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ए सी डी, triangle ABD congruent with the triangle ACD, it is also by RHS criteria. Then IV देखो IV नंबर दिया है, ट्राइंगल क्या होगा यहाँ पर देखो ये भी ADC ये ABC, ट्राइंगल ADC congruent with the triangle ABC। पर इस मैच में देख लो मैच कैसे हो रहा है, मैच पर किस चेहरा है, इसको मैच कैसे करें सर। एंगल ADB देखो ADC सर, ए डी सी 90 डिग्री हो रहा है ए बी सी के साथ, राइट एंगल मिल गया। यहाँ पर ए सी इज और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हो क्या है कॉमन है, हाइपोटेन्यूज दोनों ट्राइंगल के कॉमन है। देन डी सी इज इक्वल टू बी सी, 3 पेयर हो गया तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया आरएचएस। देन नेक्स्ट में आते हैं, क्या यहाँ पर कोई मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो इन ट्राइंगल में ध्यान से देखोगे ए बी ओ इज इक्वल टू सी डी ओ, बी ओ इज इक्वल टू सी डी ओ 90 डिग्री हो रहा है, एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी हो रहा है, ए बी इज इक्वल टू सी डी 5 सेंटीमीटर, देन ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, ये भी है, ये बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और ओ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट विद ए बी ओ जैसे हो रहा है ये सी डी ओ होगा, ट्राइंगल सी डी ओ, ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल सी डी ओ बाय आरएचएस कंडीशन। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन that QS and RT are altitudes of triangle PQR. QS and RT are altitudes of triangle PQR and QS is equal to RT। देखो ये दो ट्राइंगल है, पहले देख लेते हैं ट्राइंगल PQR, ये रहा PQR, QS and RT are the altitudes and QS is equal to RT। QS और RT दोनों इक्वल है। Each triangle QRS and RQT is congruent by RHS condition? Yes, they are congruent by RHS condition. State the 3 pairs of corresponding parts which make triangle QRS and RQT congruent. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं in between triangle QRS and triangle RQT। QRS और RQ देखो, QRS ये वाला एंगल ध्यान से देखो, ये QRS ट्रायंगल QRS एंड ट्रायंगल RQT। QRS में क्या इक्वल होगा, पहले ही हमको दे रखा है QRS में QS इक्वल टू RT, ये गिवन है। QS QS RT इक्वल है और क्या इक्वल है, तो हमारा QRS में
क्यू एस आर 90 डिग्री, क्यू एस आर इक्वल टू क्यू टी आर 90 डिग्री। तो राइट एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, कॉमन है, क्यू आर इक्वल टू क्यू आर, ये कॉमन है, तो हाइपोटेन्यूज कॉमन है, सो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया आरएचएस। सो ट्रायंगल क्यू आर एस इक्वल टू आर क्यू टी, ट्रायंगल आर क्यू टी बाई आरएचएस। तो आरएचएस में क्यों, पहला ये राइट एंगल है, ये साइड है, ये कॉमन वाला जो है वो हाइपोटेन्यूज, तो ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाई राइट एंगल एंड हाइपोटेन्यूज साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। 4 नंबर, सो यहाँ पर दे रखा है एंगल बी इक्वल टू पी 90 डिग्री और साइड ए बी इक्वल टू पी आर, ए बी इक्वल टू पी आर दे दिया गया है। व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, अगर हमको राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से कॉन्ग्रुएंट करना है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हमको राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से कॉन्ग्रुएंट करना है। हमको पता है ये राइट एंगल तो दे दिया है और वन साइड भी इक्वल दे दिया, बस हाइपोटेन्यूज से एडिशनल इंफॉर्मेशन, hypotenuse AC is equal to QR or AC is equal to QR hypotenuse है। This additional information we need, additional information we need to prove RHS condition। RHS condition के लिए हमको मिनिमम 3 कंडीशन चाहिए, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज, एक साइड। राइट एंगल दे दिया है, एक साइड दे दिया है, बस हमको AC इक्वल टू विद QR दे देगा तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय RHS। ठीक है, अब आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में दिया है इन द फिगर AC इज इक्वल टू DB। देखो ध्यान से देखो, AC जो है ये रहा ट्रायंगल में AC और ये रहा ट्रायंगल में DB, ये दोनों इक्वल दे दिया, मतलब दोनों हाइपोटेन्यूज ही इक्वल हो गए। एंड ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी मीन्स ये वाला 90 डिग्री हो गया और बी सी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये वाला भी 90 डिग्री हो गया। तो ये वाला राइट एंगल हो गया और ये वाला हाइपोटेन्यूज है, बी सी ऑल्सो कॉमन है। तो कौन सा वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ध्यान से मैच करेंगे। हमारे पास ए बी सी इक्वल टू डी सी बी हो गया 90 डिग्री गिवन है, देन ABC इज इक्वल टू DC भी 90 डिग्री गिवन है, इसमें हो गया AC इज इक्वल टू BD, ये ऑल्सो गिवन है, AC इज इक्वल टू BD और DB जो भी गिवन है, और BC क्या है, कॉमन, BC इज इक्वल टू कॉमन। तो कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा, ट्रायंगल पहले ABC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DC बाई RHS कंडीशन ABC DCB, ABC DCB कॉन्ग्रुएंट, ये सेकंड वाला होगा। Which of the following statement will show triangle ABC congruent to DCB? State the 3 pairs matching parts you have. These are the 3 matching parts here. Which side be equal to with AB? So which side be equal? AB should be equal with DC. AB should be equal with DC क्यों बोला by CP CT, CP CT से ट्रायंगल दोनों AB is equal with। एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमने यहाँ पर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा लिया। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद AB is equal to DC, CP CT corresponding parts of congruent triangle ये हो गया। तो यहीं पे हमारा वर्कशीट 4 खत्म हो गया। तो हम लोगों ने कंटिन्यूसली वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3 एंड वर्कशीट 4 खत्म कर लिया है। तो आज की क्लास को यही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ब्रेन टीचर के साथ। वीडियो अगर यहाँ तक अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक जरूर करना, अच्छे कमेंट जरूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो और ही अपनी स्किल को डेवलप करते रहो। थैंक यू।